सतगुर प्रसाद। सलोक महला नौवां। गुण गोबिंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीना। कहो नानक हर भज मना, जे बिद जल को मीन। गुण गोबिंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीना। कहो नानक हर भज मना, जे बिद जल को मीना। सहमति मुबारक मुकद्दस खुशियां भरी गोद विच सज बैठे सत संगी जनों वड भागे हां। संध्या वेले सतगुरु जी की गोद विच बैठ के प्रेम भावना नाल रब्बी बाणी का कीर्तन आप जी ने सरवण किया। सतगुरु दाता कृपा करे, गावे सुने बचन साडे हिरदे विच वस जाण ते गुरु दे बचनां अनुसार चल के असीं अपने असल मार्ग दे पांधी बन जाइए। आओ सतगुरु दाता कृपा करे। धन धन सतगुरु नौवें पातशाह गुरु नानक जोत सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज जी की पावन बाणी, जिहड़ी अक्सर भोग दे वेले बड़े प्यार दे नाल बड़े शरधा ते भावना दे नाल आप जी सुनते हो। श्लोक धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे, उन्हां दे विचार आप जी दे नाल साझी करनी है। विचार नूं रंभण तो पहला साहिबां दे चरनां च अरदास करिए, सतगुरु जी तो असीस लईए ते प्यार नाल आखिए वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। थोड़ी जी विचार इस पावन बाणी नूं विचारन तो पहला आपां सतगुरु जी दे बारे करांगे, जो गुरबाणी दे विच या उन्हां दे जीवन दा आधार जो आपां पढ़दे सुणदे ते विचारदे हैं। धन गुरु तेग बहादुर महाराज दसां पातशाहियां विचों इको गुरु ने, नौवें पातशाह जिन्हां दा प्रकाश अमृतसर साहिब की धरती ते हुंदा है। धन धन मेरी पीरी दे मालक गुरु हरगोबिंद पातशाह सतगुरु जी दे सब तो छोटे पुत्र गुरु तेग बहादुर महाराज ने। धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी का जीवन जदों पढ़ते हैं, उन्हां दे जीवन की कोमलता, उन्हां दे जीवन की सहनशीलता, अनेकां ही इहो जिहे गुण ने जिहड़े धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे विच मौजूद ने। बड़ी उदारता भी उन्हां दे अंदर है, दिल बड़ा उदार है, बड़ा दयावान है। ये गल सानू किवें पता लगती है? जदों तुसीं धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी की बाणी पढ़ते हो ना, 59 शब्द ने धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी की समुची बाणी के अंदर। 59 शब्द, एक घट 60 ते 57 श्लोक ने जिन्हां दी विचार आपां करनी है। 15 रागां दे विच ये बाणी जिहड़ी है दर्ज है ते 16वां राग
ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਰਾਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਐਡ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਰਾਗ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਆਦਿ ਬੀੜ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, उसकी तैयारी की जाती है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ गुरु अर्जन देव महाराज सतगुर 30 राग ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਦੇ ਆ। 30 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਆਦਿ ਬੀੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ 71ਵਾਂ ਰਾਗ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਰਾਗ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰੂਪ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਭੀੜ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਐਡ ਬਾਣੀ ਕਰਵਾਈ। 59 ਸ਼ਬਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ 57 ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰਨੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ 524 ਵਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, 2 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, 524 ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ 4 ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ 524 ਵਾਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਉਹ ਵੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲਗਾਮ ਪਕੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਬੜੀ ਔਖੀ ਜੀ ਘਾਟੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ। ਸਭ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤੀ ਵਿਦਵਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਤੇ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਦੀ ਲਗਾਮ ਕੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾ ਦੇਗਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਗਾਮ ਪਕੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗਲਵੱਟੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ। ਉਹ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਆ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਗਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਸਮੁੱਚਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਿੱਖੋ ਇੱਕ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਕਿਤੇ ਪੂਰਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਉਹਦੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ
ਉਹ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਟੁੱਟੇ, क्योंकि एक नूं आधार बना के जदों बाणी पढ़ेगा ते चेते रखी तेनूं बाणी समझ विच लग जाएगी। एक मैं बेनती होर करां, विद्वानां दा यह भी कहना है, हुण मैं विद्वानां की गल करन लगा, जिन्हां ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की गहराई विच जाके अध्ययन किया, उस दियां गहराइयां नूं समझिया, क्योंकि चेते रखना समुंदर नूं कोई विरला समझदा है, ते जिहड़ा समझ जाता है उन्होंने ये पता लग जाता है कि ये तो बेअंत है, अंत कोई नहीं। जिन्हां ने जपजी साहिब नूं बड़े ध्यान नाल पढ़िया, जिन्हां ने जपजी साहिब बाणी नूं बड़े मन करके पढ़िया, सुरत करके पढ़िया, उन्हां दे मुख चों एक गल निकली, सानूं इउं प्रतीत हुंदा है जिवें गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दा पूरे दा रहाओ दा बंध जिहड़ा वो जपजी साहिब होवे। होर मैं बेनती करन लगा, क्योंकि अज मैं थोड़ियां बेनतियां तुहाडे नाल साझीआं करांगा, उस तो बाद आपां शब्द दे विचार करांगे। एक भूमिका जी है शब्द नूं विचारण तो पहला, क्योंकि बड़ी जरूरी है। बेनती करन लगा सा, सतगुरु जी के घर के विद्वानां ने यह अंदाजा लाया कि भी जपजी साहिब बाणी जिहड़ी है वो समुचे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के रहाओ का बंध है, इनू रहाओ का बंध गिनते हैं। हुण बार बार बाणी के अंदर एक दी गल चलती है, सत दी, सच्चे परमात्मा दी, ओदी होंद दी, ओदी सर्व व्यापकता दी, ते गुरु की गल बार बार निरंकार की चलती है। ते यही गल इसे मंगलाचरण दे विच सतगुरु जी समझाते आ। जिहड़ी मैं एक होर बेनती कर लगा सा, कुछ बाणियां राग रहत ने, ते जिहड़ियां बाणियां बाकी आपां पढ़दे आ 31 राग, वो राग दे विच बजियां होईयां ने, वो राग अधीन ने। जिवें जपजी साहिब दी बाणी राग विच नहीं है, श्री राग तो राग शुरू हुंदा है ते जैजावंती राग ते जाके समाप्ति होती है। ये राग है। उस तो बाद चेते रखना श्लोक सहस्कृति शुरू होती है। श्लोक सहस्कृति शुरू हुई, श्लोक सहस्कृति तो बाद जिहड़ी है भट्टां दे सवैये शुरू हुंदे आ। भट्टां दे सवैयां तो बाद श्लोक वारां दे वधीक बाणी चलती है, पुनरे भी आती है, या अगे जाके आपां होर भी चौबले बाणी भी पढ़ते हैं। ये जिन्नियां भी बाणियां ने सब राग तो रहत ने। हुण इत्थे एक सवाल खड़ा हो जाता है कि जिहड़ियां श्लोक वारां दे वधीक ने बाणियां, वो राग दे विच क्यों ऐड नहीं हुईयां? की कारण सी? चेते रखना, गुरु अर्जन देव महाराज जी ने जिस वेले आद बीड़ की तैयारी की है ना, वध चुके जिहड़े श्लोक ने उन्हां नूं सतगुरु जी ने अखीर विच दर्ज कीता है। उहदे विच धन गुरु नानक महाराज जी के श्लोक, धन गुरु अमरदास महाराज जी के श्लोक, धन गुरु रामदास महाराज जी के श्लोक ते धन गुरु अर्जन देव महाराज जी के श्लोक 12 दे वधीक आपां पढ़दे हां। उस तो बाद धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी के श्लोक जिहड़े आरंभ हुंदे आ। हरेक घर दे अंदर कोई बाणी पढ़े या ना पढ़े, कोई सुने या ना सुने, अखंड पाठ सब तां हरेक बंदा लिखाउंदा, क्योंकि अक्सर वेखदे आ घरां दे विच लोकां कोल टाइम नहीं गुरु कोल बैठण दा, समा नहीं है कि वो बह के बाणी पढ़ सकण, सुन सकण। उन्हां दा समा या ते रसोईयां च बीतदा या घर दे कंमकारां विच बीतदा, पर फिर भी एक मन विच उन्हां दे आस हुंदी है कि जदों गुरु तेग बहादुर पातशाह दे श्लोक आउण ते असीं बड़े प्यार दे नाल सुणीए। पूरे दा पूरा टब्बर, पूरे दा पूरा परिवार आके गुरु दी खजूरी विच बैठ जाता है ते बड़े प्यार दे नाल धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे श्लोक पढ़दा ते सुनदा है। होर बेनती करां,
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨਾ ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ, ਨਾ ਹੀ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 59 ਸ਼ਬਦ 57 ਸ਼ਲੋਕ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਉਚਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਰਬੀ ਹੈ, ਨਾ ਫਾਰਸੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਰਦੂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਝਲਕ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਅੱਗੇ ਤੁਰੀਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇਹਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ, ਏਕੋ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ, ਏਕੋ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ, ਏਕੋ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ, ਏਕੋ ਹੈ। 3 ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕੋ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਸੇ ਲੜੀ ਵੱਲ ਪਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖੋ ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਈੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਤੇ ਕੱਕਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਵਾਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਵਾਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਡੀ ਉੜਦਿਆਂ ਸਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ, ਏਕੋ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ, ਏਕੋ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੰਦਿਆ ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਕਸ ਬਿਨ ਸਭ ਧੰਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਭਲਾ? ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਕਸ ਬਿਨ ਸਭ ਧੰਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਖਤਮ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਕਸ ਬਿਨ ਸਭ ਧੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਹੋ ਮਾਏ। ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਇਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਆਧਾਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ ਏਕਸ ਬਿਨ ਸਭ ਧੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਮਾਏ ਰਹਾਉ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਤਿ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ।
हुण सब दे अंदर चाहना ते है मैं रब मैनूं मिला, सब दे अंदर एक चाउ ते है जिहड़ा एक परमात्मा जी की बार बार एक दी गल कीती जाती है। मैं जी उहनूं वेखना होवे, जे मैं उहदे आनंद नूं माणना होवे ते मैं किवें माणांगा, मैं उहदे किवें दर्शन करांगा। है कोई तरीका, है कोई जरिया, है कोई ढंग? गुरु ने आख्या निराशता नहीं, गुरु ने हथ पकड़िया कह लगे ये नहीं कि तू उस रब दे दर्शन नहीं कर सकता, तू उस रब नूं उसदे आनंद नूं माण नहीं सकता। इको वसीला, इको तरीका है, जे सतगुरु दी किरपा हो जाए, जे ओदी किरपा नहीं ते चेते रखी एक नूं सारी जिंदगी की जिन्नियां मर्जी जन्म लैके आ जा तू भी नहीं समझ सकता। ये तां गुरु दी किरपा है, गुरु दी रहमत वरतेगी, गुरु दी बख्शिश होएगी तां तू एक परमात्मा नूं समझ लेगा, नहीं तां सतगुरु जी कहते बड़ी औखी घटती है। इसे करके आपां धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का सहारा लेने आ। इसे करके असीं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि सानू एक निरंकार की जिहड़ी है समझ आता है, सानू रब दे बारे पता लग जाए। हुण अगे सतगुरु जी किरपा करते हैं, श्लोक महला 9वां। कई सज्जन मित्र इहनूं नावां भी पढ़ लेंदे आ ते कई नौवां भी पढ़ लेंदे आ। उहदे विच कोई गरेज नहीं है, कोई नावां पढ़े, क्योंकि शब्द नावां भी मिलदा है ते शब्द नौवां भी मिलदा है। अखरी बनावट है, जिस तरह की तुसीं नौवां कह लो, नावां कह लो, उहदे विच कोई भरम नहीं। हुण सतगुरु जी शब्द विच किरपा करदे आ, गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकारथ कीन। इहदे मैं बेनती होर करदे आ, थोड़ा जिहा जदों आपां सलोकां नूं पढ़दे आ ना, एक सब तो वड्डी कठिनाई है साडे सामने, एक सब तो वड्डी प्रॉब्लम यह है, पढ़न लग्गिया असीं कदी अखरां वल ध्यान नहीं दिंदे, क्योंकि अखरां दे विच ही ज्ञान हुंदा है। जिवें आपां वचन पढ़दे आ, अखरी ज्ञान गीत गुण गा, है ना जी। बस गल इन्नी है कि अखरां नूं समझना पैंदा है। कई कहते हैं कि भी साडी समझ विच क्यों नहीं लगता, साडी समझ विच क्यों नहीं पैंदे अखर? क्योंकि चेते रखना आपां पढ़न लग्गिया ही कोई ना कोई मिस्टेक कर दिंदे आ, तां करके साडी कोई गल समझ विच नहीं आउंदी। जदों तुसीं ध्यान नाल पढ़दे हो, हुण इत्थे गुण गोबिंद गायो, ऊड़े दा जिहड़ा ऊड़ा है ना वो खुला होया, वो बंद नहीं है, है ना जी, वो बंद नहीं है। गायो भाव ओनू ध्यान नाल उच्चारण करन दी लोड़ है। हुण इत्थे सतगुरु जी कहते जन्म अकारथ कीन, इहदे भाव अर्थ, जे तू परमात्मा दे गुण कदे नहीं गाए। वैसे एक सवाल है बंदे दे अगे, जिवें जिन भाव नाल तुसीं बड़े प्रेम नाल समझोगे ते गुरु तेग बहादुर महाराज जी सवाल कर रहे आ, गुण गोबिंद गायो नहीं, हे बंदिया तू गुरु निरंकार दे गुणां नूं गाया नहीं। एक दिन मैं तुहाडे नाल गल साझी कीती सी, गुण दे अर्थ जदों कोश पढ़े ना, महान कोश पढ़ लो, गुरु ग्रंथ साहिब कोश पढ़ लो, या होर भी कोशां दे अंदर बहुतियां ने जिहड़े गुण दे अर्थ कीते आ। क्योंकि एक गुण है गग्गे नूं औंकड़ नाना गुण, ते एक है गग्गे नूं औंकड़ नन्ना गुण। इत्थे जिहड़ा शब्द वरत्या गया है वो वरत्या गया है गुण गोबिंद गायो नहीं। ते चेते रखना इहदा कई भाव अर्थ इह लैंदे आ, गुण दा अर्थ हुंदा जी पर उपकार, किते रब दे बंदिया रब दे पर उपकारां नूं तूं कदी चेते ही नहीं कीता। हुण रब दे तां साडे उत्ते बड़े वड्डे पर उपकार ने। जदों तुसीं रब वल वेखोगे, रब वल ध्यान दिओगे, किहड़ा परोपकार नहीं जिहड़ा रब ने साडे उत्ते नहीं कीता। सब तो वड्डा परोपकार है सानू आ सवासां दी लड़ी दे दित्ती। इस मनो विसारी है सो क्यों मनो विसारी है केवल दाता जी, अगर मैं आहार पहुंचावे। सतगुरु जी कहते रब दा परोपकार ही सी तेरे उत्ते, रब दा परोपकार सी जिन तू सास सवार शिंगारिया, गर्भ अगर मैं जिन्हें उबारिया, इत्थों तक तेनू रब लै आया।
हुण सतगुरु जी कहते बाल अवस्था तुझे प्यारा दूध। देखो ना रब दे परोपकार, तू बाल अवस्था विच आया, तेरा तेरे ते हजे बचपना सी। सतगुरु जी कहते रब ने तेरी उत्थे भी प्रतिपालना कर लई। रब दा गुण, रब दा परोपकार। मैं बेनती करा, रब हमेशा साडे ते परोपकार करता है। रब दा काम की है? परोपकार करना। हाँ, असी रब दे लिए की कर रहे हैं, ये असी अपने वाल झात मारनी है। रब ने साडे ते बड़ा वड्डा परोपकार कीता है। इसे शब्द नूं मैं पूरा कर दियां। जिन तू सास सवार शिंगारिया, गर्भ अगन में जिन्हें उबारिया, बार व्यवस्था तुझे प्यारा दूध, भार जोबन भोजन सुख सूद, बिरद भया ऊपर सागर सैन, मुख अप्याओ बैठ को दैन, ए निर्गुण। देखो रमैया के गुण, उथे रब दे गुणां दे परोपकारां दे लई सानू चेतन दे लई कह दिता। ते लास्ट में कहंदे ए निर्गुण गुण कछु ना बुझै। ए इन्ना निर्गुण यारा है, इन्ना अवगुणा भरिया है। हुण बंदा ते अवगुणा भरिया, ये तां नहीं कि जिंदगी सारी बंदे दी गुणा वाली है। कहते रखना असी रब दे कोलों गुण मंगदे आ, रब सानू बेअंत गुण दिंदा है। वो साडे हिस्से विच कदी भी अवगुण नहीं पाउंदा। हाँ, अवगुण सानू आप ही कमाउणे पैंदे आ। हालांकि जदों असी गुण नहीं कमाउंदे, अवगुण सानू कमाउणे पैंदे आ, आपां कमा लैंदे आ। पर विद्वान सज्जन ये भी गल नाल कहंदे आ, सब तो औखा है गुणां नूं कमाउणा ते सब तो सौखा है अवगुणां नूं कमा लेना। गुण कमाउणे बड़े औखे आ, पर जिहड़े अवगुण आ वो ते थां थां ते विकदे आ, वो ते थां थां ते जिहड़े जिੱਥੋਂ मर्जी बंदा लै सकदा है। हुण सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी कहंदे आ, ए निर्गुण गुण कछु ना बुझै, बख्श देवो तो नानक सिजै। ए दातिया इहनूं बख्श नहीं, क्योंकि इहने तेरे पर उपकारां नूं चेतिया नहीं। गुण गोबिंद गायो नहीं। हुण इह मैं बेनती कीती सी क्यों गाउणे? सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी दी इसे सुखमनी साहिब बाणी दे अंदर गुण क्यों गाउणे आ? गुण तां गाउणे आ ताकि गुण गाउंदियां गाउंदियां तेरे अंदर दी मैल न जाए। गुण गाउंदियां तेरा हिरदा पवित्र हो जाए। गुण गाउंदियां तेरा अंदर जिहड़ा वो साफ हो जाए। सतगुरु जी कहंदे गुण गावत तेरी उतरस मैल, बिन सजाए हो मैं विख फैल। आ तेरे अंदर जिहड़ियां बद फैलियां ने ना, तेरे अंदर दियां जिहड़ियां आ सतगुरु जी कहते हवानियत जिहड़ी तेरे अंदर दी ये खत्म हो जाएगी। तेरी जन्मां जन्मां दी मैल रब्बी गुणां दे गाउण दे नाल कट्टी जाएगी। जन्म कर्म मल उतरै, मन ते जाए गुमान, जदों तू रब दे गुणां नूं गाएगा, जदों तू रब दी सिफत सलाह करेगा, ये तां ही बनेगा। होर अगे आपां थोड़ा जिहा जाइए। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी इत्थे बस नहीं करते। गुरु अर्जन देव महाराज जी कहते बंदिया रब दे गीत गा, रब दे गुण गा, अपनी रसना तो गा। जिहड़ा वचन आपां पढ़दे आ ना गुरु अर्जन देव महाराज जी दा रसना गुण गोपाल नित गायन, उत्थे भी चेते रखना गुण दी गल है। रब दे परोपकारां नूं अपनी रसना दे राहीं, रब दे गुणां नूं अपनी जीव दे राहीं रोज बयान कर। रसना गुण गोपाल नित गायन, शांत सहज रह समान उपजो, सगले दुख पलायन। तेरे दुख दूर हो जाणगे। रब दे गुणां नूं गाउणा ही अपने दुखां नूं दूर करना है। देखो जदों तक असीं रब दे गुण गा रहे हां, अपनी रसना दे राहीं उस रब नूं याद कर रहे हां, ते चेते रखना साडे कोल कोई दुख नहीं जे आ सकदा। हुण मैं इत्थे होर तुहाडे नाल एक गल साझी करदा। जिन्हां ने रब दे गुण गाए उन्हां दे अंदर किहो जी बात वरती। एवें जी ना सतगुरु जी बार बार कह रहे कि रब दे गुण गा, इहदा मतलब विच कोई कारण भी ते होएगा ना, विच कोई गाउण दा कारण ते होएगा। हुण सतगुरु जी कहंदे आ
गाउण का कारण बड़ा वड्डा है। एक वचन आपां पढ़दे हां भगत बाणी दे अंदर एक वचन हुंदा हसत खेलत तेरा देवरा आया भगत करत नामा पकड़ उठाया। इहदियां लास्ट पंक्तियां वल ध्यान दिओ। रब दे गुण गाउण वालियां दे अंदर ताकत किहो जी वरतदी है। ਐਵੇਂ थोड़ा क्या सतगुरु जी ने कि बंदिया तू रब दे गुण क्यों नहीं चेते करदा। और रब दे गुणां दे विच ताकत बड़ी है। जदों तू उस ताकत नूं वेखेगा तू आखेगा सच है कि भी इहो जी ताकत किते मेरे कोल भी आंदा है। जिहड़ा वचन साझा कीता भगत बाणी दे हसत खेलत तेरा देवरा आया भगत करत नामा पकड़ उठाया। ते ओदे लास्ट दे विच एक वचन आउंदा है ज्यों ज्यों नामा हर गुण उजरै हर गुण उजरै भगत जना को देवरा फिरै। कह लगे जिवें ही रब दे नाल गल्लां गुण गाउण वाले रब नाल गल्लां करदे कहंदे रब्बा मैं बड़े चाह दे नाल गया मैं तेरे मंदिर विच बैठ के उत्थे गल कृष्ण भगवान जी नाल चलदी। कहंदे रब्बा मैं बड़ी तेरी उपासना कीती पर तेरे बंदियां ने मैनू मंदिर दे विचों धक्के मार के कढिया। पर मैं फिर भी अपना मन समझाया मैं तेरे नाल गल्लां कीतियां। मैं उतों उठ के मैं बाहर कंध दे कोल आके बह गया। पर दातिया भगत नामदेव दा अंदर किहो जिहा सी। सतगुरु जी कहंदे ज्यों ज्यों नामा हर गुण उजरै जिवें जिवें कहंदे भगत नामदेव जी हरि परमात्मा दे गुणां नूं उचारण करदे आ भगत जना का देवरा फिरै। कहण लगे उन्हां दा देवरा ही फिर गया। ਇਹ कहानी मैं तां साझी कीती कि भी एक तां रब दे गुण क्यों गाउंदे आ ਉਹ ਸਾਂਝੀ कर लई ते दूजी गल रब दे गुण गाउण वालियां दे अंदर ताकत किहो जी वरतदी है। एक होर उदाहरण दिया भगत प्रहलाद बार बार आपां जिक्र बाणी विच आउंदा है उन्हां दा। देखो मैं बेनती करां धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे विच उन्हां दी जिक्र आया जिन्हां ने सच्चा प्यार रब नाल कीता है जिन्हां सच्ची प्रीत रब दे नाल कीती है। सतगुरु जी दी बाणी दे अंदर किते भी हीर रांझे दा जिक्र नहीं आएगा किते भी लैला मजनू दा जिक्र नहीं आएगा क्योंकि झूठियां आशिकियां ने झूठे प्यार ने। हालांकि भाई गुरदास जी ने भाई साहब ने उदाहरणा दित्तियां ने पर वो होर वचन विच दित्तियां ने उन्हां दे भावंत होर ने। मैं बेनती करां इत्थे प्यार करन वाले भगत प्रहलाद जी ने इत्थे प्यार करन वाले भगत ध्रुव जी ने। भगत प्रहलाद जी रब दे गुणां नूं बयान करदे आ ते चेते रखना रब दे गुणां नूं इस ढंग दे नाल उचारण करदे आ। रब दे गुण गाउंदियां गाउंदियां रब ही प्रतੱਖ ਉਹਦੇ सामने आ जांदा है। नासिक रूप धारण कीता ना रब ने है ना जी। चेते रखना ये रब दे गुण गाण वालियां दे अंदर दी ताकत है। ते सतगुरु जी कहंदे मैं एवें थोड़े दिन बंदियां कहना गुण गोबिंद गायो नहीं तू रब दे गुण गाउंदा नहीं तू रब दे गुणां दे चेते नहीं करता। जन्म अकारत कीन तू अपना जन्म जिहड़ा है वो अकार ते भी व्यतीत करने इसे पंक्ति नूं थोड़ी रह गई सिर्फ गुणा की गल मैं साझी की है माफ करना। कल नूं जन्म अकारत कीन किवें एक कल आपां साझा करांगे। इन्नी बेनती प्रवान करियो जी भुलां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद।